नागपुरामध्ये आपल्याला पहिले ट्यूब दिल्यानंतर क्या बोली? Hi guys, am I audible? Good morning. Good morning, sir. Let's wait for 2 more minutes and then we'll start. Okay. Is my screen visible, guys? Yes, visible. Okay. Hello guys, let's start. So I'll be teaching you averages. It is one of the basic chapters that is in the syllabus for CAT, XAT, IFT, and MAT, all these competitive examinations for these schools. So let's start with a little bit of theory part. So averages is nothing but the central value in a set of data. For example, if we are given a data like 25, 30, 35, 40, and 45. If we are given the odd data, then the average is the central value. How we calculate average? Average is nothing but sum of all values, a total number of values. In this sum will be 25 plus 30 plus 35 plus 40 plus 45 upon 5. When you will calculate this is 5 plus 35 is 90, 130, 175. That will come as 35 itself. So for example, if you have odd number of observations, then the average is a central value. If we have even number of observations, like say A, B, C, D, E, and F,
then here the average is nothing but either we can use this formula, sum of all observations like A plus B till F upon 6, or we can directly say that average in this will be if they are from uh, like remember this, they should be in ascending order. Then the average will be C plus D2 when in case of even observations. Understanding, guys? Any doubts here? Guys, am I audible now? Yes, sir. Any doubts here, guys? No, sir. So try to remember this. Let's start directly with a question. So read it, I'll solve it, and then we can solve the subsequent one. Don't consider the options. All of you read the question? Guys? All of you read the question? There is no enthusiasm in the morning. Guys, पढ़ लिया सबने? Yes, sir. So let us. So in a class of 25 students, the average age is 18 years. Okay. So let's say these students are S1, S2, S3 till S25. And S1 represents the age of student 1, S2 represents the age of student 2, and S25 represent age of student 25. Average, as I told you, average is nothing but sum of all observations upon total observations. Here is sum will be S1 plus S2 plus S3 plus S4 till S25 upon total number of observations here are 20. This is given as 18 to us. Understanding this one, guys? Yes, sir. Yes, sir. Now S1 plus S2 plus S3 till S25 will be what? 25 into 18. It is how much? फटाफट से बताओ guys. Guys, 450. अब क्वेश्चन में बोला है कि द एज a student of age of 24 years leaves the class. So let us say that S1 leaves the class. S1 की एज कितनी थी जो लेफ्ट किया उसने? 24 years. So इससे S2 plus S3 S25 का सम क्या आ जाएगा? 450 minus S1. गाइस समझ आया ये सबको? Yes, sir.
सबको समझ में आया? एक ही ऐसा है अभी तक। Yes, sir. Yes, sir. तो S2 से S25 का सम आ गया 426। अब इसने बोला है कि other two new students join the class. Let us say that S26 and S27 join the class. उसमें दिया कि difference between ages of two new students is 4 years. So S26 minus 27 is given as 4. इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, S27 minus S26 equals to 4 भी हो सकता है। लेकिन ये वाला केस लेके चलते हैं। अब बोला कि if the new average of the class is now 17 years. Now average new is given as 17. That will be, ऊपर क्या लिखूं न्यूमरेटर में, फटाफट से बताओ। S2 to S27. गुड मैम। और मैम नीचे क्या लिखूं, कितने टोटल ऑब्जर्वेशन? 26. गुड। अब S2 to S26 की वैल्यू हम लोग को पता है, सॉरी S25 तक की 426। तो इससे क्या आ जाएगा, S26 प्लस S27 की वैल्यू क्या आएगी, 26 इंटू 17। ये मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस 426। गाइस समझ में आया क्या किया मैंने अभी? Yes, sir. सबको समझ में आया मैंने क्या किया कि S26 प्लस S27 की मुझे वैल्यू चाहिए, 26 इंटू 17 माइनस 426 हो जाएगा वो, दैट इज 440। इसकी वैल्यू आती है 442 माइनस 426, ये आ गया 16। तो बस दो चीजें आई, एक S26 प्लस S27 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 16। 16 आई ना सब? समझ रहे हो गाइस? और मेरे पास एक इक्वेशन ये थी, ये फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, एक इक्वेशन ये थी कि इनका डिफरेंस मुझे दिया था, द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स इज 4 years। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द एज ऑफ द ओल्डर स्टूडेंट बिटवीन द टू न्यू स्टूडेंट्स। S26 या X27 में भी ओल्डर है, उसका एज की वैल्यू निकालनी है। सो ये दो इक्वेशन है मेरे पास, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो S27 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में, तो 2 इंटू S26 कितना आया, 16 प्लस 4 इज 20। S26 की वैल्यू क्या आई, 10। सो S27 की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन में 10 कर दो, 6। सो ओल्डर वाला कितने इयर्स का है, 10 years का। गाइस जिसको समझ नहीं आया पूछो। 2 मिनट देखो से किया, क्या किया, क्वेश्चन क्या था, फिर पूछो डाउट हो तो। सबको एक एक बंदे को आना चाहिए कि कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस। एक एक बंदे को आना चाहिए। So next page. कहीं समझ आया सबको? प्लीज बताओ जिसको नहीं आया। Yes, sir. सबको आया समझ में गाइस, पक्का?
Yes, sir. चलो ये वाले क्वेश्चन में क्या होता है, मैं आपको 2-3 फॉर्मूलेज बताता हूँ, समझना। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग को फॉर एग्जांपल निकालना है, सबको हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एनीवन? No, sir. So if we want to find the average of first and natural numbers, तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1+2 से लेकर मुझे 31 तक के सम निकालना है, शुरू तक का। मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली n को 31 पुट कर दूंगा। समझ रहे हो क्या किया? कहीं समझ आ रहा है क्या किया? Yes, sir. Yes, sir. ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम है। अगर मुझे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम करना है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। मुझे क्यूब करना है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। n इंटू एन प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। समझ रहे हो गाइस? Yes, sir. इफ मुझे सिर्फ ऑड नंबर्स का सम करना है, जैसे 1+3+5+7 डॉट डॉट एन तक, ये होता है एन स्क्वायर। एन इसमें रिप्रेजेंट करता है टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 टर्म्स तक लेना है, तो 2 मतलब यहां तक लूंगा मैं, 1+3। एन को लूंगा मैं 2, तो 2 1+3 इज 4, 2 स्क्वायर इज 4। अगर मुझे एन 3 है, तो मतलब मैं 3 टर्म्स तक लूंगा। 3 टर्म्स में 1+3+5 इज 9। एन को 3 पुट करूंगा, 3 स्क्वायर इज 9। समझ रहे हो गाइस? इस केस में भी इवन नंबर्स का सम है, तो n को अगर मैं 2 पुट करता हूँ, उसका मतलब मैं 2 टर्म्स ले रहा हूँ। 4+2 6, n इक्वल 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4+2 6। n इक्वल टू मैं 3 टर्म्स तक ले रहा हूँ, तो 6 4 10 +2 12। n इक्वल टू 3 पुट करो, 9 + 3 12। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अब Yes, फॉर sir. एग्जांपल ये अलग क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। इवन हटा दो अभी फिलहाल के लिए, 20 नंबर्स का क्यूब का एवरेज निकालो। कैसे निकालेंगे, फटाफट से बताओ।
गाइस किसी का आ रहा है आंसर? Yes, sir. ओके, निकालो। अनुराग 44100 आ रहा है एवरेज। गाइस एवरेज क्या होता था? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैंने क्या बोला कि क्यूब का सम के फर्स्ट 20 क्यूब्स का। ये फॉर्मूला थर्ड वाला यूज करेंगे, तो 20 इंटू 21/2 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन n कितना है 20। ये कितना हो गया 10। सो 210 का होल स्क्वायर अपॉन 20। 21 इंटू 210/20। अनुराग समझ में आ रहा है? आपने सम निकाल दिया सिर्फ। अब क्वेश्चन जो था मेन वो सॉल्व करते हैं। ये समझ में आया सबको पहले? Yes, sir. गाइस और यस प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. अब जो मेन क्वेश्चन था वो सॉल्व करते हैं। क्यूब ऑफ द फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। पहला इवन नंबर क्या होगा? इसका सबसे पहले टर्म निकालना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्यूब का होता था n इंटू n प्लस 1/2 का पूरे का होल स्क्वायर। इसका आएगा सम 2 इंटू n प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। पुट कर दो इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल में n है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं n इक्वल टू 2 लेता हूं, मुझे क्या करना है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब। 2 क्यूब होता है मेरा 8, 4 क्यूब होता है मेरा 64। इसको ऐड करोगे 72 आएगा। फॉर्मूले में n इक्वल टू 2 डाल दो। 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 36। सो एवरेज क्या होगा? सम अपॉन n 2 इंटू। सर पर वो सम का फॉर्मूला कैसे आया? हाँ मैम वो बता दो। तो मैं क्या होता है मैम कि सबसे पहले चीज हम लोग को ये पता है फर्स्ट की n का क्यूब। तो मैंने क्या किया कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट बैठाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब किया। देखा मैंने कि थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशंस क्या कर सकता हूँ कि मुझे ये आ जाए सम ऐसा। समझ रहे हो? तो मॉडिफिकेशंस करने के बाद ये आता है। इन दिस फॉर्मूला आई डिड सम मॉडिफिकेशंस इन ऑर्डर टू गेट दिस वन। तो मैंने n इक्वल टू 1 पुट किया, देखा कि 8 आना चाहिए। तो 8 कैसे आएगा? फिर मैंने n इक्वल टू 2 पुट किया, मैंने देखा कि 72 आना चाहिए। तो कैसे आएगा?
समझ रहे हो? Yes, sir. सो मोस्टली क्या रहता है कि थोड़ा सा एक पैटर्न बनाना रहता है, पैटर्न बन जाएगा तो आपको आ जाएगा मोस्टली क्या। तो कोशिश ये करना कि पैटर्न सोचना कि कैसे बना सकते हैं। हमें फर्स्ट एन क्यूब का पता है तो वही मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करके ये लेके आया। तो एवरेज होता है सम अपॉन एन। सम क्या है, 2 × n × n+1 का स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, एन स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल दूं। ये समझ में आया सबको क्या किया मैंने? Yes, sir. सो ये क्या हो जाएगा, एन ये कैंसिल हो गया, 2n × n+1 का स्क्वायर बचा। एन मुझे डालना है 20, तो 2 × 20 × 20 + 1 का होल स्क्वायर, 40 × 21 स्क्वायर, 40 × 441। गाइस सबको समझ में आया? गाइस Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलो ये ट्राई करो। यश 160। करेक्ट है सर। वन सिक्सटी एंड 165 कैसे अभिरूप? अभिरूप अच्छा।
चलो भाई सॉल्व करते हैं. The average heights of 3 boys is given as 160. So जो फर्स्ट बॉय होगा उसने बोला है कि द फर्स्ट वन इज एज मच टॉलर देन द एवरेज एज द सेकंड वन इज शॉर्टर देन द एवरेज. मान लो कि फर्स्ट वन इज 8 मोर देन द एवरेज. सेकंड बॉय होगा 160 माइनस ए होगा. थर्ड बॉय का मैं ले लेता हूँ कि एवरेज हाइट उसकी उसकी हाइट खुद की एक्स है. सो मुझे एवरेज दिया है b1 प्लस b2 प्लस b3 अपॉन 3 इज गिवन एज 160. b1 प्लस b2 प्लस b3 कितना हो जाएगा 160 इंटू 3 विच इज, मैं b1 b2 b3 की रिस्पेक्टिवली वैल्यूज पुट कर देता हूँ इसमें. सो 160 प्लस ए प्लस 160 माइनस ए प्लस एक्स इक्वल्स टू 480. ए कैंसल्ड. 320 plus x equals to 480. X is 480 minus 320, which comes out to be 60. अभिरूप बताओ, चैट में मत लिखना, बोलो. ठीक है, समझ में आया ना सबको? सर एक मिनट. बिल्कुल बोलो. सर हमने ये कैसे अज्यूम किया कि लाइक जो B1 है वो प्लस ए बड़ा है, तो सर ऐसे तो दिया नहीं कि उतना ही छोटा B2 है. सर यही तो मतलब है इसका कि फर्स्ट वन इज एज मच टॉलर देन द एवरेज एज सेकंड इन शॉर्टर देन द एवरेज. इसका मतलब क्या है कि जितना बड़ा है ना, जितने यूनिट से b1 उतना ही एवरेज से, उतना ही b2 छोटा है एवरेज से. हाँ यस सर. एवरेज अपना 160 है, मैंने ए यूनिट्स मान लिया बड़ा है, ए यूनिट छोटा है. यस सर. समझ रहे हो? यस सर. यस. गाइस और कोई डाउट्स? गाइस सबको समझ में आया ये? गाइस Yes, sir. Yes, sir.
गाइस किसी का आ रहा है आंसर? काफी लोग आ गए 11 से। सो गाइस अप्रैल में सबसे पहले 30 डेज होते हैं। तो ये कह रहा है कि शुरू के फर्स्ट 18 डेज तक आपने 6 किलोमीटर ऑन एन एवरेज ट्रेवल किया। सो आपने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया शुरू के 18 डेज में इज इक्वल्स टू एवरेज क्या होता है, सम अपॉन एन। सम क्या होगा, एवरेज इनटू एन। एवरेज 6 से इनटू एन मेरा कितने है 18 डेज। तो मैंने शुरू के 18 डेज में 108 किलोमीटर ट्रेवल किया। आखिरी के 12 डेज में मान लो मेरा एवरेज एक्स था, तो 12 इंटू एक्स ट्रेवल किया होगा मैंने। टोटल मैंने पूरे मंथ में ऑन एन एवरेज 8 किलोमीटर पर डे ट्रेवल किया। तो 8 इंटू 30, ये मैं क्या इक्वेट कर रहा हूं, मैं डिस्टेंस इक्वेट कर रहा हूं टोटल। सो 12x will be 8, 30 into 8 is 240 minus 108, which is nothing but 132. X is equals to 132 by 12, which is nothing but 11. गाइस सबको समझ में आ रहा है? गाइस सर एक बार और समझा दो। बिल्कुल। देखो हम लोग ने क्वेश्चन में गिवन है कि शुरू के वो 18 डेज ऑन एन एवरेज 6 किलोमीटर पर डे ट्रेवल कर रहा है। तो मैंने क्या किया, अप्रैल का मंथ टोटल 30 डेज का होता है, तो शुरू के 18 डेज वो 6 किलोमीटर ऑन एन एवरेज ट्रेवल कर रहा है। तो एवरेज क्या होता है हम लोग का, सम अपॉन एन। तो सम कितना होगा, एवरेज इंटू एन। सो एवरेज हम लोग का फर्स्ट 18 डेज का है 6। टोटल डिस्टेंस ने जो पहले 18 दिन में ट्रेवल किया होगा वो क्या होगा, 6 इंटू 18, 108 किलोमीटर। आखिरी के जो 12 डेज हैं अपने ये, इसमें मान लो ऑन एन एवरेज एक्स किलोमीटर ट्रेवल किया, वही तो निकालना है हमें एक्स। तो 12 इंटू एक्स प्लस 108, ये पूरा हमारा मंथ का आ गया, टोटल किलोमीटर कितना ट्रेवल किया उसने। अब पूरे मंथ में दिया हुआ है कि यार वो उसने 8 किलोमीटर पर डे ट्रेवल किया, और वो 30 डेज का अप्रैल का मंथ होता है। 30 इंटू 8, एक्स की वैल्यू निकाल दी इससे। समझ में आ रहा है सर? यस सर। पक्का? यस सर। समझ लो, मैंने बस क्या किया है, डिस्टेंस इक्वेट किया है टोटल, जो वो चलेगा पूरे मंथ में। समझ लो। यस सर। और किसी को कोई डाउट है गाइस? नो सर। पक्का? चलो।
हेलो, गाइस एम आई ऑडिबल? Yes, sir. पुष्पक 665 कैसे आया बता सकते हो प्लीज? अरे सर जो 615 एग्रीगेट है वो एक 119 मिनट, ये थोड़ा सा मतलब लोगों को क्लियर नहीं हो शायद से, सॉरी। हाँ बोलो। आंसर चेंज होगा क्या अब? गाइस क्वेश्चन पहले क्लियर नहीं था ना? हेलो, हाँ, अब 2 मिनट में फटाफट से ट्राई करो एक बार प्लीज। गाइस एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है? नहीं प्रतीक, सम होता है। सही पुष्पक, गुड। देखो हम लोग एवरेजेस पढ़ रहे हैं तो एवरेजेस का लॉजिक बताऊंगा इसमें, ठीक है? गाइस अगर मेरा पहला ऑड नंबर ए है तो मेरा दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? गाइस बोल तो चैट में मत लिखना, ए विजिबल प्लस नहीं है टू। चैट। A+2 क्यों होगा? देखो पहला ऑड नंबर 135 से होते हैं ना, हमेशा ऑड नंबर का 2 का डिफरेंस होता है। थर्ड ऑड नंबर A+4, A+6। मैंने क्या बोला था कि अगर मैं ऑड नंबर का एवरेज लूंगा 5 नंबर्स का तो उसका एवरेज क्या आएगा? सबसे पहले बताया था ना कि A B C D E 5 नंबर्स है मेरे, इनका एवरेज क्या होता है? A+4। सर मिडल वाला। C। हाँ, सी। तो इस केस में A+4 होगा बिल्कुल ना। तो A+4 एवरेज है, ये एग्रीगेट है। एग्रीगेट मतलब सम। A+4 मेरा 615/5 आ गया, 123। ए कितना आ गया? 119। मेरा नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स क्या होंगे मेरे? A+10, A+12, A+14, A+16, A+18। इनका एवरेज क्या होगा गाइस? प्लस A+14। +14। A+14 एवरेज है, दैट इज सम ऑफ दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 नंबर्स हैं। सम कितना आ गया? 5 इंटू A+14। ए की वैल्यू मुझे पता है 119। 5 इंटू 119 प्लस 14, 5 इंटू 133। गाइस 625 कैसे आ रहा था ये बताओ एक बार। गाइस बताओ। गाइस
सबको ये समझ में आया क्या किया? Yes, sir. Understood. और लोग प्लीज बताओ। गाइस सिर्फ 2 ही का पता चला है अभी तक, 39 पार्टिसिपेंट्स हैं। सर एक बार रिपीट करिए। मैम क्या समझ में नहीं आया? आप मेरे को एक बार समझाओ क्या समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताऊं। सर ये 119 कैसे आया? ठीक है मैम बता देता हूँ। ये देखो, ये समझ में आया कि इनका एवरेज हमारा A+4 होगा, ये समझ में आया? यस सर। तो मैम एवरेज क्या होता है? सम अपॉन एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन। सम मेरा कितना दिया मैम? 615 दिया ना एग्रीगेट। यस सर। और कितने टर्म्स है मेरे पास? 5 टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5। यस सर। मेरा बीच का जो है वो एवरेज है, इज इक्वल टू सम अपॉन एन। ये वैल्यू 123 आई। यस सर। A+4 मेरा 123 है, तो A कितना हो जाएगा? 123 माइनस 4, 119। ओके सर। समझ रहे हो मैम? यस सर। यस सर। और कोई डाउट किसी को? गाइस पूछ लो, समझ में आना चाहिए हर चीज। गाइस सबको समझ में आए तो नेक्स्ट वाला सबका आंसर आना चाहिए फिर।
चलो गाइस सॉल्व करते हैं. लेट द करेक्ट एवरेज बी x. हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 इंटू एक्स. ये कितना गया? एवरेज होता है, याद रखना, सम अपॉन n. तो मैंने सम निकाला, ये करेक्ट सम है. अब करेक्ट सम कैसे आएगा? इनकरेक्ट सम क्या था? 30 इंटू 24, सॉरी 64. इसमें से देखो याद रखो कि स्टूडेंट्स थे, उनका सम अपॉन n, दैट इज एवरेज. स्टूडेंट्स जो उनका सम होगा वो S1 पहला स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, S2 दूसरे के, S3 तीसरे के, ऐसे S30 अपॉन 30 इक्वल्स टू गिवन है. गाइस म्यूट पे हो जाओ प्लीज. सो ये हमें गिवन है, तो S1 प्लस S2 S30 तक आ गया हमारा 64 इंटू 30. अब इसमें से क्या है कि 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स गलत है. तो मान लो S1 S2 S3 इन तीनों के मार्क्स गलत हैं. सो S4 से S30 कितना आएगा? 64 इंटू 30 माइनस ऑफ S1 प्लस S2 प्लस S3. गाइस ये समझ में आ रहा है सबको? गाइस यस सर। सबको? Yes, sir. सो S4 से S30 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 इंटू 64 माइनस इनके जो लिए गए थे 96 were taken mistaken as 69, 96 और 68. सॉरी एक सेकंड. $69 was read as 96, तो 96 हो गया पहला. 89 was read as 68 दूसरा एंड 69 तीसरा. अब ये है, इतना सम याद रखना, ये है S4 से S30 तक, ये पूरा सम यहां तक का. हमें क्या करना है इसकी, जो अब S1 प्लस S2 प्लस S3 ऐड करेंगे, जो करेक्ट वैल्यूज थी उनकी, वो क्या थी? 69, 89 और 96. गाइस समझ आ रहा है क्या किया? Yes, sir. सबको Yes, sir. पक्का? सो 30x की वैल्यू क्या आई? देखो 96 नेगेटिव, 96 पॉजिटिव में, 69 पॉजिटिव में, 69 नेगेटिव में, माइनस 68 है प्लस 89 है, तो कितना हो गया? प्लस 21. तो 64 इंटू 3 होता है 1920 प्लस 21 1941. x कितना आ जाएगा? 1941 बाय 30. ये कितना वैल्यू आ रहा है? 64.7. सबको समझ में आया गाइस? Yes, sir. पक्का? सर मैंने एक्चुअली मतलब ऐसे किया था कि लाइक जैसे हमें पता था सर, लाइक सम ऑफ सबके मार्क्स डिवाइडेड बाय 30 64, एंड देन लाइक मैंने अज्यूम किया कि पहले 3 बच्चों के गलत मतलब मार्क्स थे, तो मैंने उन्हें m माइनस लाइक फर्स्ट का 27 कम हो गया, लाइक 69 था, मतलब 96 लिया था पर 69 था. तो वैसे ही बाकी 2 के लिए सर लाइक जैसे 21 ज्यादा थे, तो मैंने मतलब लाइक m का वैल्यू 64 डाल के लाइक उसमें सर नियरली आंसर आया था 63.63. तो वैसे चलेगा क्या सर? नहीं सर, 63.63 अगर आएगा आंसर तो फिर आप ये दोनों ऑप्शन मार्क करोगे ना. हाँ. इनमें से एक चीज आप समझ रहे हो,
एग्जैक्टली ऑप्शन ये आना चाहिए आंसर। यस सर। मतलब आपने जो किया ना वो चीज यही है कि फॉर एग्जांपल सर मैं क्या कर रहा हूँ, -96 + 69, समझ रहे हो, आपने इसको बस एडिशन कर दिया ये चीज का। हाँ ये सर लाइक मैंने लिया था M1 -27, लाइक जैसे वो 69 हाँ में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार चेक करना, हाँ मुझे लग रहा है कैलकुलेशन सॉरी मिस्टेक है। सर, मतलब 63 नहीं था, 64.63 आया था, हाँ तो वो सर 1989 आ रहा था। 64.6 है तो सही है सर। हाँ गाइस और डाउट्स पूछो प्लीज गाइस। सबको समझ में आ गया? इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाते हैं यार कि सबको समझ में आ जाए। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया। समझ में आ रहा है ना वैसे एवरेजेस क्या होता है? सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। करेक्ट पुष्पक।
गाइस सबका आंसर आया? देखो क्या करते हैं, ठीक है गाइस। सो उसके पहले उसका 60 एवरेज था, तो 60 इन एक्स, ये हो गया टोटल सम। लास्ट में उसने 100 सेंचुरी मारी, इज इक्वल्स टू उसका टोटल एवरेज कितना था, 2 रन से इंक्रीज हो गया, पहले 60 था अब 62 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी थी, x+1, क्योंकि x तो सेंचुरी स्कोर करने के पहले एक इनिंग्स जिसमें सेंचुरी स्कोर किया है। 60x + 100 इज इक्वल्स टू 62x + 62। 62x और 60 माइनस कर दो, और 100 और 62 माइनस 38 इज इक्वल्स टू 62x - 60x, x 19 आ गया। लेकिन हमें टोटल इनिंग्स निकालनी है, वो हमारी है x+1। गाइस सबको समझ में आया ये चीज? गाइस Yes, sir. Yes, sir. और ये प्लीज, Yes, sir. और प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है। देखो कैट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, थोड़ा सा बस प्रॉब्लम क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो जाता है, समझने में डिफिकल्टी हो जाता है, तो थोड़ा सा कोशिश करना कि ये सर ऑप्शन से भी कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन बात क्या है कि सर क्या होता है ना, कैट में मैंने आपको बताया था कि नॉन एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या है कि आंसर पुट करना रहता है, जब इंटीजर आंसर पुट करना रहता है ना, तो इसमें काफी बार चांस है कि ऑप्शन नहीं दिए हों, तो लॉजिक समझो कि कैसे करना होता है, उस केस में तो बैठाना ही पड़ेगा ना लॉजिक। तो फिर यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो मेन चीज हमेशा हर क्वेश्चन, अभी जब इनिशियली आप प्रैक्टिस कर रहे हो और मतलब सीख रहे हो, तो ऑप्शन से मत जाया करो, ऑप्शन तो जान दिए जाते हैं, लेकिन बात है कि ऑप्शन से मत जाया करो, कोशिश करा करो कि मेथड से जाओ, सीखो समझो, एंड देन उसके बाद जब फॉर एग्जांपल मॉक्स वगैरह दोगे और प्रैक्टिस करोगे आगे, देन आप थोड़ा सा स्मार्ट वे से कैसे जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी मेन चीज सीखो कि कैसे मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है क्या, सबको समझ में आना है 20 कैसे आया? चलें फिर आगे।
Nayan. कैसे है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, बता सकते हो प्लीज? सर कंडीशन के हिसाब से हम अजय की एज निकाल सकते हैं, जैसे 44, और बहुत बढ़िया सर, सही सही, मोहन Excellent. और सोहन की बहुत बढ़िया सर। देखो गाइस, अभी प्रेजेंट एज मान लेते हैं। अजय की ए है, मोहन की एम है, सोहन की एस है। तो 4 इयर्स पहले अजय की एज कितनी होगी गाइस, फटाफट से बताओ। A-4 A-4 मोहन की M-4 यही तो गिवन है। इसका एवरेज, इन लोग का एवरेज एज 4 इयर्स अगो 28 था। तो a प्लस एम प्लस एस माइनस 12 कितना गया, 28 इंटू 3 होता है 84। a प्लस एम प्लस एस आ गया 96। अब बोला है कि मोहन और सोहन की आफ्टर 6 इयर्स एज विल बी 32। तो मोहन की अभी एम है, सोहन की एस है, आफ्टर 6 इयर्स प्लस 6 और इसकी एस प्लस 6 अपॉन 2, इसका एवरेज है 32। यहाँ पर m प्लस एस की वैल्यू पुट कर दो इस जगह। तो a प्लस 52 इक्वल्स 96, a बराबर 44। अजय की परसेंटेज आ गई 44। बात समझो, हम लोग को दो चीज कंपैरिजन करने के लिए एक चीज पता है, अजय की एज, मोहन की एज नहीं निकल पा रही है। मोहन प्लस सोहन की एज तो पता है हमें 52 है, लेकिन इंडिविजुअली मोहन और सोहन की एज कितनी है वो नहीं निकल पा रही इंफॉर्मेशन से जो हम लोग को गिवन है। तो हम लोग बता नहीं सकते वो कितने साल उससे छोटा है या बड़ा है। गाइस समझ रहे हो? तो दैट्स व्हाई इट इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। गाइस समझ रहे हो? गाइस Yes sir. और लोग प्लीज यस बोलो, अगर नहीं आया तो नो बोलो। Yes समझाता हूँ फिर मैं। Yes sir. यस सर। चलो चलो। तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा मतलब देखना, कोशिश करना। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बहुत मुश्किल होता है आंसर, लेकिन बात ये है कि हर चीज दोबारा रीड करना क्वेश्चन की, क्यों, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो कैसे निकाल सकते हैं। काहून तुला काय करायचंय? सांग.
कॉन्जर्वेटिव है ना, x plus 1 x plus 2 ऐसे से जो लास्ट 12 कॉन्जर्वेटिव तो 12 कॉन्जर्वेटिव लास्ट गुड पुष्पक. somebody will message सही. किती बार 1 2 3 4 5 झाले 12 ठीक आहे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तिथे ते 26 26 plus 27 upon 2 तिथे 26.5 आणि विचारलेलं आहे if the average of the first 20 integers 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 language of the following description and the average of the first 20 integers 1 3 4 5 3 4 5 6 7 8 6 7 8 1 1 9 ते 10 5 बरोबर आहे ना हाय from the tele. You don't have to program, okay? Yeah. गाइस और किसी का है आंसर? गाइस सो अगर मेरा फर्स्ट इंटीजर a है, दूसरा a plus 1 होगा, लास्ट वाला क्या होगा गाइस? a plus 32 consecutive integers है ना, लास्ट वाला बोला है कि फर्स्ट 20 इंटीजर्स का एवरेज f है. सो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास ऑड होते हैं तो मैं एवरेज बोलता हूँ मिडिल वाला टर्म. अगर मेरे पास इवन होते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ? इसका एवरेज क्या लूंगा मैं? ए बी सी डी ई एफ का C plus D by 2. तो सब 6 टर्म्स है मेरे पास, तो मैं थर्ड और फोर्थ का ले रहा हूँ, याद रखना. मेरे पास जब 10 टर्म्स होंगी तो मैं फिफ्थ और सिक्स्थ का एवरेज लूंगा. जब मेरे पास 20 टर्म्स है मैं तो 10th और 11th टर्म का एवरेज लूंगा. इसमें मेरा फर्स्ट टर्म a है तो 10th टर्म क्या होगा? a plus 9.
11th टर्म क्या होगा, a प्लस 10। सो इसका एवरेज क्या होगा, a प्लस 9 प्लस a प्लस 10 बाई 2। ये मेरा f है, तो f मेरा क्या है, 2a प्लस 19 बाई 2। गाइस इतना समझ में आया सबको? यस सर। सबको? यस सर। अब मेरा लास्ट 12 consecutive इंटीजर्स क्या होंगे, a प्लस 20, a प्लस 21 से a प्लस 31। सो इसमें मैं क्या लूंगा टर्म, a प्लस 21, a प्लस 22, 23। 26 और 27। बिल्कुल नहीं सर, नहीं सॉरी सॉरी, सही कह रहे हो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और आएगा ना a प्लस 20। तो इसमें देखो, नाम नींद आ रही है प्राची? सो a प्लस 20, अब मैंने क्या कहा था, इसका वो जो होगा एवरेज, सो a प्लस 20, अब समझो इसका जो 12 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स में मेरा 5th और 6th था, 12 टर्म्स में मेरा 6th और 7th होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और 7th ये टर्म्स हुए। सो मेरा जो n होगा दैट इज a प्लस 25 प्लस a प्लस 26 बाई 2 टू a प्लस 51 बाई 2। कहीं समझ आ रहा है ये सबको? हाँ सर वो भी कर सकते हो बिल्कुल। कहीं ये समझ में आ रहा है सबको? गाइस यस सर। यस सर, पर यस सर। a प्लस 20 क्यों ले, हाँ सर a प्लस, 20 क्यों लेंगे सर, लाइक जब आखिरी 12 डिजिट्स हम लेंगे तो सर। सर a प्लस 20 से तो शुरू होगा लास्ट 12। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस ए से शुरू है ना मेरा यस फर्स्ट टर्म। सर, हाँ ठीक है सर, वो a प्लस 20 21st टर्म होगा, हाँ, ठीक है सर। सो मोस्टली क्या है कि अब देखो n की वैल्यू 2a की वैल्यू इससे निकालो कितनी आएगी, 2n माइनस 51 आ रही है। 2a की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू n माइनस 51। ये वैल्यू यहाँ इक्वेट कर दो, तो 2f की वैल्यू क्या है, 2a प्लस 19। 2a की वैल्यू ये डाल दो, 2n माइनस 51 प्लस 19। क्या यार, 2f इक्वल्स टू 2n माइनस 32 और 2 2 काट दो, n माइनस 16। f है वो n से 16 कम है, तो कौन बड़ा हुआ? गाइस सबको समझ में आया ये चीज? गाइस यस सर। मोरेसिस प्लीज। चलो गाइस जला निकालो।
पुष्पक गलत किया। एवरेज पूछा है सर, सम नहीं पूछा है। समझ रहे हो? हिमांशु सही। वैभव फिर से करो। भाई सबका आंसर आना चाहिए, ऐसा कराया था। दो मिनट और ले लो, सबका आंसर आना चाहिए प्लीज, ध्यान दो। प्रतीक फिर गलत किया। पुष्प फिर गलत किया। मिस्टर हिटमैन फिर गलत किया। साक्षी सही। बढ़िया गाइस। देखो, सम ऑफ फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट मतलब 45 नंबर्स, कितना आएगा? हमें एवरेज निकालना है। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन एन। ये सम 45 इंटू 46 इंटू 91 बाई 6 इंटू एन। एन क्या है? 45। 45 कैंसिल। 46 इंटू 91 बाई 6 is equals to 23 into 21 by 3 आएगा 667 point something, 3697 point something। समझ में आया प्रतीक, आप लोगों ने क्या गलती किया? तो वो एग्जाम में ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे आपको। एक ऑप्शन पक्का आपका जो आंसर था ना सम वाला, वो होगा ऑप्शन, दूसरा एवरेज वाला करेक्ट होगा। जल्दी में लोग फटाफट से सम वाला कर देंगे, निकालना एवरेज है। भाई समझ आया क्या कर रहे हैं? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बता दो, टाइप कर दो चैट वैट में जो भी। समझ में आया कुछ एवरेजेस का कि कैसे क्या करेंगे? क्वेश्चंस एवरेजेस के दें तो कर लोगे ना आप थोड़े बहुत? यस सर। अच्छा ठीक है गाइस, प्रैक्टिस करते रहना, डाउट्स वगैरह हो तो पूछना, ठीक है? और कोई डाउट्स है आपका? रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगा आपको एक दो दिन के अंदर, तो फिर आप देख सकते हो।
और कोई डाउट्स है जनरल में, कुछ पूछना है तो? नेक्स्ट मीट में भी एवरेजेस ही कंटिन्यू करें? सर मोस्टली नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफी सारे, कल आपको बताया था ना कितने सारे चैप्टर्स थे, तो Yes. मोस्टली अगर एक ही चैप्टर्स के मैं आपको 50 क्वेश्चंस करा दूंगा तो फिर बाकी चैप्टर्स रह जाएंगे। तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करा रहा हूँ क्वेश्चंस समझने के लिए, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है, खुद करना है। डाउट्स वगैरह हो बिल्कुल पूछो, मैं बता दूंगा आपको। सर आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन शेयर कर सकते हो क्या व्हाट्सएप? हाँ मैम, मैं आपको मटेरियल मैम मैं देता हूँ आपको, मैं सर को दे दूंगा, सर आपको शेयर कर देंगे। यस। और कोई डाउट्स है जनरल में कुछ? संडे संडे सुबह पढ़ाई हो गई, मूड खराब हो गया क्या सबका? हाँ नो सर। सर रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? सर रिकॉर्डिंग वो सचिन सर से हम लोग शेयर कर देंगे, आप उनसे ले लेना, 2-3 दिन या 2 दिन के अंदर मिल जाएगा मैक्सिमम। एक सर बुक आती है अरुण शर्मा करके मैथ्स की, आप पूछ रहे हो कि बुक कौन सी चाहिए, तो शर्मा करके आती है एक क्वांट की, उससे सॉल्व कर सकते हो करना चाहो तो इनिशियली, वरना हम लोग मटेरियल देंगे तो आप उससे भी कर सकते हो। और कोई डाउट गाइस? चलो गाइस एंजॉय करो। हाँ सर लेक्चर वाइज मटेरियल शेयर करते हैं, थोड़ा टाइम रुक जाओ, करता हूँ। चलो गाइस एंजॉय योर संडे, बाय।